Today we will do Maths 2 practice at 1.2 of standard 9. The following table shows point on a number line, decide whether the pairs are congruent or not. We have to decide whether the pairs are congruent or not. We have to decide whether DE, segment DE and AB are congruent or not. Let us see. To find whether they are congruent or not, I have to find distance DE. Distance DE. For that, I have to show for the coordinate of D. What is the coordinate of D? Coordinate of D is -7 and coordinate of E is, what is coordinate of E? E is 9. Now which is greater? Here 9 is greater than -7. 9 is greater than -7 because 9 is positive. Okay, if 9 is greater than -7, I can say distance DE, length DE means distance DE we have to find. Okay, क्या होगा? 9 minus -7, 9 minus -7. This will become distance DE equal to what? 9 minus plus. This will become 16. Answer is 16. DE is 16. Okay. If DE is 16, if I get AB also 16, then they both are congruent. Okay. Let's see. A is what? The coordinate of A is -3. And what is B? B is, coordinate of B is 5. Okay. Which is greater? Again here 5 is greater than -3. So I have to find length of AB means distance of AB. Distance of AB. What is distance of AB? Greater number minus the smaller number. So 5 minus -3. तो ये माइनस हो जाएगा प्लस. This will become 8. This will become 8. What I got? AB 8. AB 8. That means both are congruent. The length are not equal. Both length are not equal. Distance means length. Distance means length. Length of DE is not equal to, this is not equal to का sign, length of AB. This is first and this is second. ठीक है? From first and second. From first and second. Okay. If these are not equal, then segment, therefore segment DE and segment AB are not congruent. Because their lengths are not equal. अगर लेंथ इक्वल होता तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते. ठीक है? Are not congruent. Now the second sum is we have to find BC. तो B कितना है? देखो यहाँ पे B is 5. And C कितना है? 2. C is 2. तो first I will write B 5 and C 2. Coordinate of B is 5. Coordinate of C is 2. Now which is bigger? यह 5 is bigger than 2. 5 बड़ा है 2 से. तो मुझे डिस्टेंस BC निकालना है. कैसे निकलेगा? बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर. बिगर नंबर माइनस, तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 3. तो डिस्टेंस BC कितना मिला? 3. डिस्टेंस BC 3 मिल गया. ठीक है? डिस्टेंस BC 3 मिल गया. अब मेरे को बताओ कि इफ डिस्टेंस BC is 3, देन अगेन आई हैव टू फाइंड AD. A कितना है मेरे पास? A है -3, D है -7. A है -3, A is -3 and D is -7. Now which is greater here? माइनस का छोटा नंबर बड़ा होता है. माइनस का छोटा नंबर इज ग्रेटर.
ठीक है, -7, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, डिस्टेंस AD निकालना है। डिस्टेंस AD कितना होता है, बिगर नंबर इज -3 -7 -3 प्लस 7, 7 में से 3 गया तो कितना बचा, 4। डिस्टेंस AD क्या हो गया, 4। अगेन इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, इट इज इट कॉन्ग्रुएंट, इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट बिकॉज लेंथ ऑफ BC is not equal to length of AD। लेंथ ऑफ AD ये फर्स्ट है एंड दिस इज सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके। तो अपन क्या बोलेंगे वापिस, सेगमेंट BC and segment AD are not congruent, again these are not congruent। अगर लेंथ इक्वल होता तो ये congruent हो जाते, ठीक है। These were the 2 examples I had did for you, and rest of the third one you can do, that is congruent because both are same। अच्छा, अब next one we will do is question number 2। Point M is the midpoint of AB and AB is given. I have to find AM. Suppose I am drawing a number line. This is a line. This is A. This is B. And this is midpoint M. ठीक है। तो फर्स्ट व्हाट इज गिवन, लेंथ ऑफ AB इज गिवन, लेंथ ऑफ AB इज 8। ये गिवन है, क्या है ये, गिवन, ठीक है। मुझे फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ AM, ठीक है। लेंथ ऑफ AM क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना, क्योंकि मिड पॉइंट है इसलिए। हाफ ऑफ व्हाट, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AB, Why? Because M is midpoint of segment AB। सेगमेंट AB का midpoint है M, ठीक है। अब ये कितना है, हाफ, AB है 8, 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा 4 आ गया। AM क्या आ गया मेरा, 4। लेंथ ऑफ AM इज 4, ओके। चलो हो गया, ये 4 आ गया। नाउ द थर्ड वन इज P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। सपोज ये एक लाइन बना दिया, यहां पे C है, यहां पे D है और इसका मिड पॉइंट यहां पे कहीं है और वो है P। मुझे क्या दिया है, डिस्टेंस लेंथ ऑफ CP दिया है ना, लेंथ ऑफ CP इज 2.5। मेरे को फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ CD। तो लेंथ ऑफ CD क्या होगा, डबल हो जाएगा इसका, डबल, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इसका डबल, ये आधा रहेगा इसका CD का, तो ये आधा एक हो जाता है, तो उसका डबल, 2 इंटू लेंथ ऑफ CP। अगेन यू हैव टू राइट P इज midpoint of which, midpoint of segment CD, ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2.5, ये हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। CD क्या मिला मुझे, 5, therefore CD इक्वल टू लेंथ ऑफ CD इज 5। ये भी हो गया। अब अपन करेंगे फोर्थ वन में क्या दिया है, AB दिया है, BP दिया है, AP दिया है। नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस स्टेटमेंट्स, ओके। व्हाट इज गिवन, फर्स्ट आई विल राइट व्हाट इज गिवन हियर, ओके। AB इज 5 सेंटीमीटर, ओके। फिर क्या दिया है, BP इज 2 सेंटीमीटर एंड AP इज 3.4 सेंटीमीटर। अब मेरे को ये बताओ कि कौन सा किससे बड़ा है।
तो ऑब्वियसली 5 बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन 2.4 3.4 एंड दैट इज ग्रेटर देन 2 तो अब 5 क्या था, ए बी था। 5 क्या था, तो उसकी जगह पे ए बी लिख दो, इज ग्रेटर देन, और ये 3.4 क्या था, ए पी लिख दो, और ये क्या था, बी पी लिख दो। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको अच्छे से स्टेटमेंट में लिख दो। सेगमेंट ए बी सबसे बड़ा रहेगा, इज ग्रेटर देन सेगमेंट ए पी, ये मिडल में रहेगा, एंड दैट सबसे छोटा वाला कौन सा है, सेगमेंट बी पी। ओके, ये हो गया मेरा फोर्थ सम। नाउ द फिफ्थ सम। व्हाट इज द फिफ्थ सम? फिफ्थ सम इज one ray is given, one figure is given and we have to find the opposite ray। ये सब चीज फाइंड करना है। ठीक है, let's see, we'll find it। पहले ये दिखना चाहिए। okay now the first one is write the name of opposite rays of ray rp। rp किधर है, देखो rp का opposite ray क्या होगा, 2 रे अपोजिट है उसके, देखो R कॉमन आना चाहिए है? तो RP का अपोजिट होगा RS RT। ठीक है, तो मैं बोलूंगा रे RS और रे RT is the opposite ray, is the opposite ray of ray P। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला देखेंगे। राइट द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑफ रे PQ एंड RP। PQ एंड RP। अब जरा ध्यान देना, PQ किधर है, इधर है, RP किधर है, इधर है। दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। क्या चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन। अगर तुम लोग देखेंगे तो ये PQ रे किधर जाएगा, इधर जाएगा, और RP भी किधर जाएगा, इधर ही जाएगा। तो ऑब्वियसली दोनों यही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट मीन्स द इंटरसेक्शन विल बी व्हाट, ये कॉमन क्या आएगा दोनों में, PQ। क्या आएगा, PQ। इंटरसेक्शन विल बी रे PQ। इंटरसेक्शन विल बी व्हाट, रे PQ। देखो PQ भी ये डायरेक्शन में जा रहा है, RP भी यही डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये यहां पे कॉमन क्या आएगा दोनों में, PQ आएगा। PQ में भी PQ है, RP में भी PQ आएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो रे PQ is intersection of ray PQ and ray RP। ठीक है, अब यूनियन ऑफ सेट PQ, ये भी इसके लिए भी लगेगा, ये PQ एंड QR। यूनियन मतलब दोनों का जॉइंट करके, PQ और QR दोनों का यूनियन। दोनों का यूनियन क्या होगा, यूनियन क्या होगा बोलो। अब रे कौन सा है, PQ, ये यहां जा रहा है। QR यहां जा रहा है, QR यहां जा रहा है, PQ यहां जा रहा है, PQ यहां जा रहा है, QR यहां जा रहा है। तो इसका यूनियन क्या होगा, अगेन लाइन PQ, अगेन लाइन PQ, लाइन PQ। लाइन PQ क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में जाएगा। लाइन मीन्स दैट विल गो इन बोथ द डायरेक्शन। लाइन मीन्स देखो वापिस सुनो, रे PQ इधर जा रहा है और रे QR इधर जा रहा है, इस तरफ। तो PQ इधर जा रहा है, QR इधर जा रहा है, तो इनका दोनों का
अगर अपन वो देखेंगे इंटरसेक्शन, तो पी क्यू लाइन भी हो सकता है, क्यू आर लाइन भी हो सकता है। तो आंसर, बेटर आंसर फॉर मी इज क्यू आर। दोनों भी लिख सकते हैं, तो आई विल राइट क्यू आर, रे लाइन क्यू आर, लाइन क्यू आर, लाइन क्यू आर। कैसे? देखो, ये पी क्यू है और ये क्यू आर है। अब दोनों का जोड़ूंगा मैं तो मुझे क्यू आर मिलेगा, लाइन क्यू आर। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने तुम लोगों को बनाया वो डायग्राम। ओके, नाउ स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज सबसेट। अब किसका सबसेट होगा क्यू आर? किसका सबसेट होगा क्यू आर? देखते हैं। बहुत सारे चीजों का सबसेट हो सकता है क्यू आर। सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट। सबसेट मतलब क्या? मैंने तुम लोगों को सबसेट के बारे में बताया था सेट्स में। व्हाट इज सबसेट? पहले देखते हैं कि क्यू आर क्या है। ये है क्यू आर। क्यू आर का सबसेट क्या क्या हो सकता है? क्यू आर का सबसेट क्या क्या हो सकता है, देखते हैं। देखो, क्यू आर ये है। क्यू आर का सबसेट जो इसमें ही आता है, सेम में क्यू आर का आर क्यू भी हो सकता है सेम, क्योंकि वही सेट। अभी इंडिया का सबसेट इंडिया ही होगा, तो वैसे ही क्यू आर का सबसेट आर क्यू भी हो सकता है एक। दूसरा, एस क्यू हो सकता है, एस क्यू हो सकता है। फिर तीसरा, टी क्यू हो सकता है, आर क्यू, एस क्यू, टी क्यू। ये तीनों सबसेट हो सकते हैं, तीनों सबसेट हो सकते हैं। तो सेगमेंट क्यू आर इज सबसेट ऑफ रे, पहला क्या है, आर क्यू, एस क्यू, टी क्यू। आर क्यू पहले लिख दो, आर क्यू, देन रे, एस क्यू एंड रे, टी क्यू एंड रे, टी क्यू। इन सब का सबसेट होएगा। और भी आ सकते हैं, लेकिन तीन बस हो गया, और डिफिकल्ट हो जाएगा समझने के लिए तुम्हारे। ये तीन ही समझो। राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रेस विथ कॉमन आर। अपोजिट रे, आर कॉमन रहना चाहिए, आर यहां पे है। अब अपोजिट रे क्या हो सकता है? बहुत सारी चीज हो सकती है, आर पी, आर एस, ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो आर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, आर पी और आर एस। क्या लिखेंगे? रे आर पी एंड रे आर एस। आर opposite rays with common and क्या है? with common and point R। ठीक है, अब अगर S लूंगा मैं तो दो कॉमन, अगर टू रेज विथ कॉमन एंड S लिया मैंने तो दो रे। अब अपोजिट भी बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ अपोजिट नहीं बोला है, खाली कॉमन एंड क्या बोला है, S। तो मैं अपोजिट ही बता देता हूं, SR और ST, SR और ST, ये दो रे है। ठीक है, SR और ST, रे SR एंड रे ST, ठीक है, रे SR और रे ST आर टू रेस विथ कॉमन एंड, क्या कॉमन एंड था, पॉइंट S। ठीक है, अब इंटरसेक्शन ऑफ रेस SP एंड ST,
वापिस जाओ फिगर पे। एस पी एन एस टी, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? एस पी और एस टी का, देखो एस पी यहाँ है, एस टी यहाँ है, ये तरफ जा रहा है तो ये तरफ जा रहा है, तो कॉमन पॉइंट सिर्फ एस आएगा, पॉइंट एस, पॉइंट एस। इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? पॉइंट एस, पॉइंट एस इज intersection of ray SP and ray ST। ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये 6 क्वेश्चन नंबर में देखो क्या दिया है, ये फिगर दिया है, ठीक है। ऊपर स्टेट द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी। बी से कौन सा इक्वी डिस्टेंस होता है? तो ये आंसर लिखना है तुमको। बी यहां पर है, इक्वल डिस्टेंस पे कौन से पॉइंट है इसके? तो यहाँ पे देखो, यहाँ सी है, यहाँ पे ए है ना। इसका फासला कितना है? 4 - 2 = 2 है ना। फिर यहाँ 2 - 0 = 2, तो दोनों का सेम डिस्टेंस आ रहा है। तो ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे क्या है? इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट सी एंड पॉइंट ए आर इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस कहां से? फ्रॉम पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट बी, as both are at distance, both are at a distance। कितने डिस्टेंस पे है ये दोनों? बोथ आर एट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे बोलो? 2 के डिस्टेंस पे, डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स फ्रॉम बी, फ्रॉम बी, ठीक है। और एक चीज है, पॉइंट बी से और कौन सा है बताओ? देखो ये डी है, तो 6 में से 2 गया तो कितना? 4 बचता है। कितना बचता है? 4। अब यहाँ पे पी है, ये 2 है, 2 - 2 ये भी 4 होता है। इसका भी डिस्टेंस 1 2 3 4 होता है। तो दोनों का 4 डिस्टेंस है। तो मैं बोलूँगा पॉइंट डी पी एन, पॉइंट डी आर इक्विडिस्टेंस, फ्रॉम point B, from point B, as both are at a distance। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? of 4 units, of 4 units from B, from B, ठीक है। अब दूसरी चीज यहां फाइंड करना है, डिस्टेंस UV और UL। पहले UV का बात, U कितना है यहाँ दिया नहीं है, तो यहाँ -4 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -5। कितना आएगा? -5, ठीक है। V कितना है वो भी दिया नहीं है, यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या आएगा? 5, ठीक है। तो मेरे को U क्या मिला? U मिला -5 और V मिला 5। कौन सा बड़ा है? 5 इज ग्रेटर देन -5, 5 इज ग्रेटर देन -5। अब डिस्टेंस निकाल दो, डिस्टेंस UV क्या होगा? 5 - -5, ये हो जाएगा 5 + 5 10। कितना आ गया इसका डिस्टेंस? 10।
डिस्टेंस UV कितना हो गया 10, डिस्टेंस UV 10 आ गया। ठीक है, अब दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, UL। अगेन U कितना है, अभी मिला था ना मुझे 5। L देखो L कहाँ है, L यहाँ है, या -2 है तो यहाँ -3 आएगा। क्या आएगा, -3 है ना, नंबर लाइन है इसके लिए -3 आएगा बीच में। तो L क्या है, -3। L क्या है, -3। L है -3। अब मुझे चाहिए क्या, कौन सा बड़ा है, माइनस का छोटा नंबर बड़ा होता है, ये इससे बड़ा है। तो मुझे चाहिए अभी डिस्टेंस UL। UL कैसा मिलेगा, -3 -3 -5 -3 -5। ये क्या हो जाएगा, -3 ऐसे ही लिखा, माइनस माइनस प्लस, 5 में से 3 गया तो 2। तो डिस्टेंस UL क्या मिला मुझे, 2। क्या मिला, 2। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। थैंक